اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات وبراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو وجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جس بندے کو آل محمد کا احسان یاد ہے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ تو جو ہے بات سن کر ہوگی وعدہ وفا ہو گیا، محمد و آل محمد کے عزاداروں کے چیروں کی زیارت نصیب ہوں گی، آل محمد کی بارگاہ میں میرے بھی عیسیٰ شامل حال ہو گیا۔ میرے مالک خالق اللہ زوار اختر حسین اور آپ جتنے مومنین نوجوان بچے سادہ تشریف فرما ہو، مالک آپ کے مال میں رزق میں عزت میں معرفت میں اضافہ بلکہ کون ہے مالک بھی محتاج نہ فرمائے جو ہاتھ آل محمد کی بارگاہ میں پھیلانا ہے۔ توجہ پوری کرنا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بے سے سین تک سارے قرآن کی آپ تلاوت کریں۔ پورے قرآن میں پہلی بات شاید آپ اس پہ داغ نہ دیں لیکن اگلی بات آپ کے لیے آسان ہے۔ پورے قرآن میں لفظ معراج نہیں ہے، حدیثوں کی کتابوں میں معراج کا لفظ ہے، آیت میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت میں لفظ ہے سبحان الذی اسرا۔ اسرا کا معنی ہے، لغت اٹھا جا کے دیکھنا، اسرا کا معنی ہے رات کی سیر۔ جو مجھ سے پہلے پہنچ گئے انہیں جنت تک میں واہ واہ کرتا جاؤں گا۔ جو مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہو انہیں میں جنت کے دروازے تک سیلوٹ کرتا جاؤں گا۔ قرآن میں لفظ اسرا ہے، اسرا کا معنی ہے رات کی سیر۔ اب ہاتھ نیچے رہ جائے جس بندے کا وہ علم قریب ہے، اپنے علم پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ہاتھ کے ظلم کی معافی مانگی۔ کائنات میں پوری پاکستان کے کونے کونے میں حسین کی نوکری کی ہے، 5-6-7 ملکوں میں بھی حسین کی جوتی کے صدقے میں کیا ہوں۔ دنیا میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا جو جاگیروں کی سیر کو جائے اور جوتی اتار جائے۔ کیا بات ہے اس ہاتھ کی؟ بھائی جان میں سلام کروں آپ کے ہاتھ کو، ہاتھ بلند کرے ہر حیالی حیدری۔ اللہ اکبر، اتنے اچھے خریدار مجھے اسلام مل گئے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو جاگیر جو آگے بیٹھے ہو، آگے بیٹھنے شوق کو صرف بولنا پڑتا ہے تاکہ خطیب کے آپ ہم سفر آگے اگلا محلہ ہوتا ہے، پچھلے والے تو سارے ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جو جوتی پہن کے نہیں، یہ سیر ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ تھوڑا سا جذبات پہ کنٹرول کرے جائے، بات وقت بدل جائے گا، مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا۔ آپ کے جذبات تو ہیں آل محمد کے ساتھ لیکن مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا، بالکل نہیں جائے گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ اللہ کہتے ہیں تسبیح کے لائق ہے وہ جو اپنے عبد کو جس نے سیر کرائی مسجد اقصی تک، یعنی مسجد سے مسجد تک کا سفر ہے رسول کا۔ ایک حرف کے میری کوئی خیانت ثابت کرے، عباس کی قسم کھا کہہ رہا ہوں میں اپنی زبان کاٹ کے تمہارے گاؤں کے پنڈ کے چک کے اس گوشت کے گٹوں کو پھینکوں۔ لفظ ٹھیک ہو، تیرا ہاتھ بلند نہ ہو تو میں اس کا قصوروار میرا نہیں ہے، میں نے بات پہنچانی ہے۔ رسول کے بارے اللہ کہتے ہیں جب رسول سیر کے لیے گئے تو مسجد الحرام سے گئے، ٹھیک ہے۔ 95% شیعہ سنی کی روایتیں موجود ہیں کہ رسول حضرت ام ہانی کے بیٹی ہے حضرت ابو طالب کی، ہاتھ بلند ہے میری، جی 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 جی، میں
میں کتنے سلام کروں؟ بس آپ کی دعا مل گئی، ہاتھ بلند ہو گیا، میں راضی ہو گیا، میری تھکاوٹ اتر گئی، سفر میرا ٹھیک ہو گیا جی۔ حضرت ام ہانی بیٹی ہے حضرت ابو طالب کی، ہمشیرہ ہے تیرے اور میرے مرشد علی کی۔ بازاری چٹائی پر بیٹھ کر ابو طالب کے ایمان کو بھونکنے والے بازاری نسل کے مولویوں، اللہ ابو طالب کے گھر کو مسجد الحرام کہتا ہے، تو کہتا ہے اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ جو ہاتھ ہے وہ بلند ہونا چاہیے ہے۔ جی 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 مالک آپ کو عزت دے، کتنا آپ نے یہ محنت سے یہ مومنی، جی 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 بھائی جان، کیسے لوگ مجھے خریدار مکر ہاں پھر کہہ دیتے ہیں جس طرح آپ کہیں مطلب مسجد الحرام سے اللہ کہتا گئے حضرت ام ہانی کے گھر سے۔ چلو آپ نے داد دی، آپ نے میرے پر احسان کیا نا، میری قیمت جو مجھے مل گئی، تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ بات ہے تھوڑی سی مشکل، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے۔ حضرت ام ہانی کے گھر سے گئے، یہ 95% روایت ہے۔ 5% روایت ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر سے گئے، یہ 5% روایت ہے۔ 95% حضرت ام ہانی کی ہے، 5% حضرت خدیجہ کی ہے۔ اگر حضرت ام ہانی کے گھر سے گئے ہیں رسول معراج پر، تو اس کا گھر مسجد الحرام۔ اگر ملیکۃ العرب کے گھر سے گئے ہیں تو خدیجہ کا گھر مسجد الحرام۔ اگر ام ہانی کے گھر سے گئے ہیں تو ام ہانی بھی شیعہ ہے علی کی۔ میں نے کہا تھا نا بات مشکل ہے، میں نے کہا تھا نا یہ بچہ سمجھ گیا، بڑے لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ علی محمد میں کیا کروں، بڑے لوگ پیچھے رہ گئے، بچے سمجھ گئے بات کو۔ کیونکہ اگر علی اپنی ماں کا امام ہو سکتا ہے تو بہن کا امام نہیں ہوتا۔ اگر ام ہانی کے گھر سے بھی گئے ہیں تو وہ علی کی شیعہ ہے، اگر خدیجہ کے گھر سے بھی گئے ہیں تو وہ بھی علی کی شیعہ ہے۔ میں جملہ کہوں اور پھر بندوں کے منہ اتر جائے، پھر وہ اللہ کرے منہ علی کے شیعہ کا نہ ہو، باقی جس کا بھی اس منہ سے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ابھی 4 سال کے علی تھے کہ جناب خدیجہ علی کی انگلی پکڑ کر اپنے گھر کے صحن میں شیعہ سنی کتابیں بھری پڑھی چلانا سکھا رہی ہے۔ ادھر سے سرکار مصطفیٰ دروازے سے داخل ہو کر کہتے ہیں خدیجہ جی مولا بیعت کر علی کی۔ اب جو پہنچ گئے ہو، مجھے تو وہی سننے آئے گا جو ولایت سنے گا، جس کو ولایت کا پتہ نہیں وہ اس میں آیا کیوں ہے۔ ہم مجمع کو چاٹنا نہیں ہوتا ہے، ہم نے پیغام دینا ہوتا ہے۔ خدیجہ بیعت کر، خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بی بی نے فوراً علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ لفظ بیعت کے صیغے استعمال کیے۔ انا بیتک یا مولا کے، میرے مولا میں تیرے اگر بیعت کرتی ہوں، میرے مولا میں تیرے آگے بیعت کرتی ہوں، میرے مولا میں تیرے آگے بیعت کرتی ہوں۔ حضرت عبداللطیف بھٹائی کی نگری کے ساتھ قدموں میں بیٹھ کر میں جملہ کہنے لگا ہوں، بندے کا ہاتھ بلند نہ ہو، میں سید کو ماننا نہ چھوڑ دوں، موقع سے استعفیٰ نہ دے دوں۔ اگر خدیجہ کے گھر سے گئے تو وہ بھی علی کی شیعہ ہے، ام ہانی کے گھر سے گئے تو وہ بھی علی کی شیعہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں مسجد الحرام سے گئے ہیں، اور اللہ علی کے شیعوں کے گھر کو مسجد کہتا ہے تو مسجد میں علی کا نام بھی نہیں۔ آپ کو مولا جہاں سے بھی گئے وہ مسجد الحرام ہے۔ خریدنے کا موڈ ہے، خریدنے کا موڈ ہے نا، تھکے ہوئے تو نہیں ہو، سارے خریدار ہوں، تو پھر یہ نہ مجھے احساس نہ ہو کہ میں بات ایسے کہہ بیٹھا۔ یہ کون گیا ہے معراج پر؟ رسول نہیں، نبی نہیں، یاسین نہیں، طٰہٰ نہیں، مزمل نہیں، ہے وہ پہلے پہنچ گئے میں بابا کہتا ہوں، مدثر نہیں، عشق اول نہیں، حسن اول نہیں، خلق اول نہیں، خلق اول نہیں، والشمس کے چہرے والا نہیں، والقمر کی پیشانی والا نہیں، واللیل کی زلفوں والا نہیں، عبد کیا ہے۔ ابھی تو سب نے کہا تھا میرا خریدنے کا موڈ ہے۔
اور جو میرے ہم سفر ہو گئے تم مجھے تنہا نہ چھوڑنا، باقیوں کو بھی انشاءاللہ ملا لیں گے۔ عبد کیا ہے اللہ، عبد کا لفظ ہے۔ اللہ کہتا ہے مسجد الحرام سے حجاب احدیت تک یہ میرے رسول کی ابدیت ہے، رسالت ڈھونڈنی ہے تو اس سے آگے ہے۔ اچھے لگے ہیں وہ چہرے جن پر مسکراہٹ آ گئی ہے، قیمتی لوگ ہیں وہ جو سمجھ گئے ہیں مجھ سے پہلے، یہ ابدیت ہے، یہ رسالت نہیں، نبوت نہیں۔ رسالت ڈھونڈنی ہے تو اس سے آگے، سید دعا کرنا، نبوت ڈھونڈنی ہے تو اس سے آگے، ولایت محمد کو دیکھنا ہے تو اس سے آگے۔ خدا کا واسطہ جتنے کالے کپڑے پہن کر چوک میں کھڑے ہو کر ہے حسین کا ماتم کرتے ہو، ان بندوں پر مجھے یقین ہے کہ وہ جنت تک مجھے واہ واہ کرتے جائیں گے۔ اللہ کا محمد نبی عبد کہا، محمد عبد ہے، آدم عبد ہے، نوح عبد خدا ہے، موسیٰ عیسیٰ عبد قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو عبد صالح کہا ہے، کسی نبی کو عبد غفور کہا ہے، کسی نبی کو عبد شکور کہا ہے، تیرے محمد نبی کو بھی عبد کہا ہے۔ جگر پھٹ جائے گا میرے گھر جانے تک اگر میرا جملہ یہاں پر بکا نہ، خدا کی قسم مجھے خریدار نہ ملے تو۔ کائنات کا ہر معصوم عبد ہے، حسین عبد نہیں، ابو عبد ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت یزیدیت، پنڈری سوالہ کھلانا حاضری۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جو ہاتھ بلند ہے یہ صدقہ حسین کا خیرات لے رہا ہے، جو ہاتھ بلند نہیں ہوا اللہ کرے چلو کہ وہ بھی جائے۔ زیارت نہیں پڑھتے ہو شبیر امام کی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے ہر عبد کا مالک حسین۔ تھوڑے بندے آپ بولے، اب تھوڑے بندے بولے، سمجھنا بھی ہمیں بولنا ہے تاکہ میں مطمئن رہوں۔ اے ہر عبد، مولوی کہتے ہیں حسین کی کنیت ہے۔ بے وقوف ہو، پتہ نہیں کن لوگوں کے متھے دین لگ گیا ہے، ہاتھ چڑھ گیا ہے نا، نہیں ہوا ہے نا، ان کے ہاتھ چڑھ گئے، پکڑ لیا انہوں نے دین کو، قبضہ کر لیا، انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں، دشمن آل محمد ہے۔ کنیت بڑے بیٹے کے نام سے ہوتی ہے۔ 1 2 3 4 چلو سارے ہاتھ بلند ہو گئے۔ کنیت بڑے بیٹے کے نام سے ہوتی، کنیت ہوتی تو ابو سجاد ہوتی، ابو العلی ہوتی، ابو زین العابدین ہوتی۔ کنیت نہیں، ابھی 4 سال کے حسین تھے کہ جب رسول دیکھ کے فرماتے یہ میرا ابا عبداللہ بیٹا ہے، علی محمد آج کے بعد تیرا فون آئے تو میں تیری شادی خوشی میں شامل ہوں گا، مجلس پڑھنے میں حال نہ آیا، چونکہ یہاں قیمت ملنا چھوڑ دے وہاں ہم بکانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کائنات کا ہر نام عبد ہے، حسین ابو عبداللہ ہے، جو عبد ہے اس کا مالک حسین ہے۔ آدم عبد ہے تو مالک حسین ہے، نوح عبد ہے تو مالک حسین ہے، انبیاء عبد ہے تو مالک حسین ہے، اوصیاء عبد ہے تو مالک حسین ہے، اولیاء عبد ہے تو مالک حسین ہے۔ اٹھ کے بھی داد دیتے تھوڑی ہے نا جی، یہی وجہ ہے کہ مبالغہ کے میدان میں 5 ہستیاں گئی ہیں نا، رسول بھی پیدل، علی بھی پیدل، حسن بھی پیدل، بطول بھی پیدل، حسین سوار ہو کے گیا۔ جو ہاتھ حسین کو سلام کرے، حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت پنڈری سوالہ کھلانا حاضری۔ واہ میں آپ کو واہ کہہ رہا ہوں، ایسی قیمت آپ نے میرے لیے جملے کی دی، سبحان اللہ۔ عظمت مولانا حسین علیہ السلام، گناہگار سلمان۔ سارے پیدل ہیں، حسین سوار ہو گئے کیونکہ وہ سارے عبد ہیں۔ حسین ابا عبداللہ ہے۔ اچھا دیکھو دیکھو ورنہ زیارت بار سچ ہے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نجیج اللہ،
अस्सलाम, हुसैन मौला की ज़ियारत है। अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन अलीयन वलीयिल्लाह। है ना ज़ियारत? अब 5 बंदे इस बात की कीमत कर दे, वरना नहीं तो मैं अपने आप को पहले कह रहा हूँ वाह 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 वाह। आदम विरसा है, हुसैन वारिस है। हाँ, ये तो काफी बंदे हाथ बुलंद कर गए, ये तो बच्चों के हाथ बुलंद हो गए। नूह विरसा है, हुसैन वारिस है, क्योंकि वो अब्द है। रसूल अब्द है, ठीक है ना? अल्लाह का सुभान अल्लाह ज़ी असरा बिअब्दी, मैंने अपने अब्द को सैर कराई। अली क्या कहते हैं? यहाँ एक गलत फहमी भी तुम्हारी दूर हो जाएगी, दाद ना भी देना लेकिन दूर हो जाएगी। अली क्या कह रहे हैं? अन्ना अब्दुम मिन उबैद मुहम्मद। अली कहते हैं मैं मुहम्मद का अब्द हूँ। ये जुमला मैं वीडियो से सामने कैमरे के कमर कह रहा हूँ, इंटरनेट पे भी मूवी चलेगी, पता नहीं वो इस्लामाबाद से लेकर दुनिया के किस किस खित्ते में लोग मोमिन देखेंगे। मैं सामने कह रहा हूँ कि ये जुमला है तुम्हारे मिजाज का, ये किसी इलाके के मिजाज का नहीं। मैं ऐलान कर रहा हूँ, अली कह रहे मैं अब्द हूँ मोहम्मद का, रसूल का नहीं, मोहम्मद का अब्द है। क्योंकि जब वो रसूल बन के खड़ा होता है तो यही रसूल कह रहा होता है नाउ दे अली मजहर अजाइब तजर हो कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सजन अली बे अलीयन बे अलीयन बे अलीयन बे अली। और जब यही रसूल मोहम्मद बन के बैठा होता है तो फिर अली कहता है अना अब्दुन मिन उबैद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का अब्द हूँ। यहाँ पर अंगूठा छाप मौलवी ने ये तर्जमा करना शुरू कर दिया जवार साहब कि अली गुलामान मोहम्मद में से एक अदना सा गुलाम है। खबरदार बेवकूफ हो तो मुफ्ती बन गए नहजुल बलागा में इतनी लानत की अली ने मुफ्तियों के ऊपर। हाँ, गलत फतवे देते हैं, अली फरमाते हैं गलत फतवे देते हैं। मुफ्ती अल्लाह सिर्फ, मुफ्ती रसूल भी नहीं है। वरना सूरत निसा को घर में जाकर पढ़ना, अल्लाह रसूल से कह रहा हबीब खबरदार, ये तुमसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं, इनसे कहे फतवा सिर्फ अल्लाह दे सकता है। मेरा हाथ नहीं खुल जाना, हाथ मौलवी में तो दुपट्टी पियान है, मेरा हाथ मौलवी को दूध पट्टी पिया, वो अली को सलाम कहां से करो? फतवा दे देते अली गुलामा, गुलाम नहीं। उठ के भी तुम्हारा मजमा बोले तो फिर भी दाद थोड़ी है। अली गुलाम मोहम्मद नहीं, अब्द मोहम्मद है। जिस तरह मोहम्मद अल्लाह का अब्द है, इसी तरह अली मोहम्मद का अब्द है, क्योंकि गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं दिए जाते। हाथ बुलंद करा है, अली भी अब्दियत होती क्या है? जो अब्दियत होती है वो होती क्या है? सजदे में सर रखना, ये अब्दियत है। ठीक है, ये इंतहाए अब्दियत है, अपने आप को जलील कर देना मालिक के सामने। ठीक है ना, ये अब्दियत है। तो ये मुझे इन पर भाई जाना ऐसे यकीन है नगमे पर, जिस तरह मुझे अली की विलायत पे यकीन है कि ये कीमत मुझे मिले ही मिले। यहाँ से कायनात की अब्दियत मैंने पस्ती की जानिब जाते हुए देखी है, क्योंकि अब्दियत नीचे जाती है, पस्ती की जानिब जाती है। जो पहुंच गए हो क्या बात है? कायनात हो, आदम की अब्दियत हो तो भी पस्ती की तरफ, वो नूह की अब्दियत हो तो भी पस्ती की तरफ। सिर्फ मेरा मोहम्मद नबी है जिसकी अब्दियत बुलंदी की तरफ जाती है।
سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کیا بات ہے, جو ہاتھ 3 4 10 12 بلند ہو گئے, قیمتی لوگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے. کائنات کی ابدیت تنزلی کی جانب جاتی ہے, نیچے جاتی ہے. محمد کی ابدیت بلندی کی جانب جاتی ہے. ہاں میں تجھے ابو عبداللہ کا مقام بتاؤں. مسجد اقصی حجاب احدیت تک محمد کی ابدیت ہے. جہاں اس کی ابدیت ٹھہرتی ہے پشت پہ حسین ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے آپ بھائی جان, جو ہاتھ حسین کی بارگاہ میں پھیلے. اگر تم تھک گئے تو تم میرا بہانہ ہے. تمہاری تھکاوٹ میرا بہترین بہانہ بن جائے گی. جہاں پر تم نے خریدنا چھوڑ دیا ہم منبر چھوڑ دیں گے. وہاں آگے نہیں بھیجے جاتے. جہاں تک سوچ ہو, جہاں تک سلطنت چلے, ٹھیک ہے. کائنات کی ابدیت نیچے, حسین کے نانا کی ابدیت بلندی کی طرف. جہاں اس کی ابدیت ہے پشت پر حسین ہے. رسول کہاں سے گئے؟ مسجد الحرام سے. کہاں تک؟ مسجد اقصی تک. 126 معراجیں رسول کی تمہارے علماء نے لکھی ہیں, فقہ جعفریہ کے علماء نے. 126. یہ موسیٰ تھوڑا ہے. اور بسم اللہ بھائی آگے آ جائے سے کائنات کی ابدیت 126 دفعہ تمہارے علماء نے لکھی ہیں. 110 معراجیں رسول کی علماء اہل سنت نے لکھی ہیں. علامہ احمد رضا خان بریلوی نے لکھی ہیں. 110 دفعہ رسول معراج پہ 110 دفعہ گئے. قیمتی جملہ ہے جی, قیمتی لوگ بھی تشریف لے آئے. 126 مرتبہ گئے یا 110 مرتبہ گئے. ہر عالم نے لکھا ہے, بات بڑی خوبصورت ہے, کہ باراستہ کربلا گئے. بس چھوڑ دو ممبر. جتنی دفعہ بھی گئے باراستہ کربلا گئے. براق معنی ہوتا ہے جی بجلیاں. آسان ترجمہ یہی, شر سے بھی زیادہ رفتار ہے براق کی, فر سے بھی تیز ہے. خطہ کربلا کے اوپر سے براق گزری. اچانک محمد نے نیچے دیکھا, اسی خطے پر نگاہ پڑی. او جبریل, جی مالک, براق روکی. یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا مولا کربلا. فرمایا پھر نیچے ہوتا. کیا بات ہے ان ہاتھوں کی جو ہاتھ مسلسل بلند ہے علی کی بارگاہ میں. جملے پر ہاتھ کتنے بھی بلند ہو جائے, نہیں بھی ہوں تو بھی میں مطمئن ہوں عباس کا علم گواہ ہے. اپنے عشق میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں. بات کی وجہ سے کہوں تو حسین مجھ سے ذاکری چھین لے. اپنے عشق میں کہنے لگا ہوں. محمد ملنے جا رہا ہے اللہ سے. یہ ہے مٹی حسین کی. پتہ نہیں کیا کشش ہے حسین کی ذروں میں. اللہ کے مسافر کو بھی واپس بلا لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ جیئے, یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ زبانیں سلامت رہے, یہ آپ کے بخت سلامت رہے. مالک یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ کرے جو آل محمد کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. براق سے اترے, چند لمحے رکے, پھر براق پہ سوار ہوئے, پھر سفر شروع کیا. عرش کے قریب رسول پہنچے. محمد براق سے اترے, سرکار جھکے. آوازیں گزرتی, حبیب جھکے کیوں؟ جاگنانی والوں, پروردگار جوتی کے تسمے کھولنے لگا ہوں تاکہ جوتی اتار کر تیرے عرش پہ سوار ہو جاؤ. جو ہاتھ پہلے بلند ہو گئے تمہارے ہاتھوں کو میں جنت تک سلام کرتا جاؤں گا, تاکہ جوتی اتار کر تیرے عرش پہ سوار ہو. ابھی تکلف سے کام نہ کیجیے, جوتی سمیت ہو, کیونکہ تیری جوتی کے تلوے سے حسین کی مٹی جو لگی. یہ ہاتھ جی 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 سلامت رہے آپ. یہ خاک ہے حسین کی. اچھا,
जन्नत को हमने सुनी तो है ना, सूरत रहमान में पढ़ना, अल्लाह ने जितनी जन्नत की मखदूम साहब किबला तारीफ की है, बंदे का मरने को जी चाहता है। इतनी रानायां, खूबसूरतियां, हुस्न, जमाल, आसाइश, जिंदगी जिंदगी, फनाई नहीं, मौत नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, क्या हुस्न और जमाल है जन्नत का। सोने के कंगन और तख्त लगे हुए हैं, वहां पर तुम पहनकर कंगन सोने के तख्तों पर बैठोगे जो दुनिया में अली अली कर रहे हो, कोई कमी नहीं ना। लेकिन मुझे हुसैन की आखिरी नमाज की कसम है, आले मोहम्मद के मिंबर की कसम है, मैंने अपनी आंखों से न पढ़ा हो तो मैं अंधा हो के मर दूं, शबीर मुझसे पेनाई छीन ले, तेरा हाथ बुलंद ना हो तो तेरा हाथ हुसैन का मुजरिम बन जाता है। लेकिन जब जिब्रील जन्नत से कभी कभी जमीन की तरफ आता है ना, हुरान जन्नत, जिब्रील की आपा पकड़ कर कहते हैं, जिब्रील भाई जमीन पे जा रहा है, वापसी पे खाके शिफा जरूर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हाथ बुलंद करो है। जी बुराक सवारी, जिब्रील नौकर, चिट्ठी भी आई, खत भी आया, पैगाम भी अल्लाह ने भेजा, सवारी भी भेजी, नौकर भी भेजा, रसूल गए भी सही, तो बस सिर्फ एक रात के लिए। कितने अच्छे लोग हैं यार। अगर वो भी अल्लाह आ गए, उसने एक रात को 18,000 साल में बदल दिया। मौला की कसम है, जो पहुंच गए हो ना, मेरे दिल को इन्होंने ठंडक पहुंचा दी। ये सिर्फ एक रात के लिए किया, लेकिन वो अल्लाह है, उसने एक रात को 18,000 साल, मेराज की रात 18,000 साल की रात है, 90,000 कलमात है अल्लाह और रसूल के दरमियान। 18,000 साल सुना है आपने, लेकिन गौर नहीं फरमाया। इसका मतलब 18,000 साल दिन नहीं चढ़ा, मैं बैठा रहो तुम दाद देते रहो। 18,000 साल दिन नहीं चढ़ा, तलू सूरज नहीं हुआ। मौलवी की चबाड़े बंद हो जाती है, वो कांपने लग जाता है, दांतों को पसीना आ जाता है ये जुमला सुन के उनका। तुम्हारे अंदर की बात का मुझे कैफियत का नहीं पता कि तुम उड़ोगे, बैठे रहोगे, क्या करोगे, लेकिन जुमला है, इतना सारा है, बड़ा कीमती। 18,000 साल सूरज ही नहीं निकला, दिन भी तलू जब नहीं हुआ, तो इसका मतलब है 18,000 साल न किसी ने नमाज पढ़ी है, 18,000 साल न किसी ने रोजा रखा है, 18,000 साल कोई इबादत नहीं हुई, बंदे जागे ही नहीं। 18,000 साल में कोई मरा है, 18,000 साल में किसी का रिस्क बढ़ा है, कायनात की तकदीर का निजाम रुका हुआ है। चलो 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 चलो, फकीर की नगरी में बैठ कर जुमला सुना दो। मैं इस बच्चों जितना था जब से जाकिरीन से सुनता था, फिर किताब में पढ़ा कि जाकिर मंसूर जब वो शाम के दरबार में माविया के सामने गया तो उसने कहा कि तू अदब इसको उस वक्त टाइम देना जब सूरज गरूब होने लगे। सूरज गरूब हो जाएगा, अज़ान शुरू हो जाएगी, ये ना कसीदा पढ़ सकेगा, हम नमाज पढ़ने चले जाएंगे। पर सूरज ने अपना रुख मगरिब की दीवार से रखा, मंसूर उठा, उसने पहले सूरज को देखा, कहते अगर आज तू गरूब हुआ, कल मैं तुझे चढ़ने नहीं दूंगा। जो बंदा थक गया वो सांस ले ले, कोई बात नहीं है, जो उसके दिल में अली धड़क रहा है वो बंदा मेरे साथ बोलता है, कल मैं तुझे मशरक पे उभरने नहीं दूंगा, रुक जाओ। मैं अली का कसीदा पढ़ने लगा हूं, वो कसीदा पढ़ता रहा, सूरज रुका रहा, वो कसीदा पढ़ता रहा, सूरज रुका रहा, वो कसीदा पढ़ता रहा, सूरज रुका रहा। जो बंदा न सुन सके न बोल सके वो कान बंद कर लेते कि न सुने, न उसका दिल जले न कटे। जिस बंदे के अंदर अली धड़कता है, दिल नहीं धड़कता, वो बंदा और भी जाए तो उसने अपनी माँ को सलाम करे, मेरे पर उसका एहसान ही कोई नहीं है। जिस तरह फर्ज कर लो कि आजकल सूरज 7 बजे गरूब होता है, फर्ज करो उस वक्त भी 7 बजे होता था, 7 बज गए या 9 बजे सूरज गरूब नहीं हुआ। अब अल्लाह के तकदीर के कुछ फैसले हैं कि 7 बजे सूरज गरूब होगा, 7:01 पर इतने बंदे मर जाएंगे, इतने बंदे पैदा होंगे, इतनी हवाएं चलेंगी, इतनी जगह पर बारिश होगी। ये 7:01 का है कि मगरिब के बाद ये काम होने हैं।
ना वो डूबता है, ना कोई पैदा होता है, ना कोई मरता है, ना कोई जाग उठता है। बाजारी चटाई पर बैठकर नजफ के शाह को भोगने वाले बाजारी मौलवियों, जिस अली के छोटे से छोटा नौकर मलंग अल्लाह की तकदीर को रोक सकता है, अली तुझे 2 रोटियां नहीं दे सकता। यही तो वजह है कि मिंबर कूफा पर बैठकर आपको मेरे मुर्शिद अली ने, मुझे नहीं पता वक्त कितना हो गया, मिंबर कूफा पर बैठकर मेरे मौला खुतबा मेराज दे रहे थे। अली ने ये जुमले फरमाए कि जब मेरे सरदार मेराज पर गए तो 18,000 साल की रात थी, 90,000 कलमात हुए, लेकिन जब वापस लौटे तो वुजू जिस पानी से करके गए थे वो चल रहा था पानी, दरवाजे वाली कुंडी हिल रही थी, बिस्तर की गर्मी बाकी थी जिस बिस्तर से उठ के गए थे। अली ने दूसरी दफा जुमला फरमाया, तीसरी दफा फरमाया, एक बंदा मस्जिद कूफा से उठा, अब बुजुर्ग पहुंच जाएंगे, उसने रसूल की मेराज पे शक किया, अली के कलाम पे शक किया, बोला नहीं, चुप करके मस्जिद से निकल गया। दिल में सोचता गया ऐसे कैसे हो सकता है, 18,000 साल की रात भी हो, पानी भी चलता रहे, कुंडी भी हिलती रहे, बिस्तर की गर्मी भी बाकी रहे। ये घर पहुंचा तो इत्तेफाक की बीता है कि बीवी इसकी मछली बना रही थी। वो कहती है फलां के अब्बा शुक्र है आप तशरीफ ले आइए, जरा दरिया से पानी तो भरे। वो घड़ा उठा के अली के कलाम पे शक करके दरिया के किनारे पे आया, घड़ा भर के किनारे पे रखा, गर्मी का मौसम था, दिल चाहा गोता लगाओ, गोता लगाया तो था, उभरा तो थी। दांत बंद हो गए तुम्हारे, बोलना छोड़ दिया, हम क्या करेगा। गोता लगाया तो था, उभरा तो थी, न मक्का न मदीना न कूफा न यसरब गैर इलाका, औरत जात सहारा चाहिए। मैं तो कहता हूं मौलवियों से करो दुश्मनी अली से, जिन्स न बदल जाए। और वैसे भी बाबा फिदा हुसैन शाह जी तेरे मुर्शिद अली का फरमान है, अली फरमाते हैं, कोई बंदा ऐसा ना हो जो मुस्कुराए ना, अली फरमाते मेरा दुश्मन दाढ़ी वाली औरत होती है, अली का दुश्मन मर्द नहीं होता हमेशा। जो है दरगार है वो कुल का मददगार है, उनसे हमें भी प्यार है, वो नारा अली, वो नारा अली, और ये दुश्मन क्योंकि अली मर्द है ना, रसूल ने कल नहीं कहा ना कल अल्लाह मुझको दूंगा जो मर्द होगा। बस यार इस बात पे भी दाद नहीं दी है, आवाज नहीं आ रही, ये नहीं सुनी आज तक बात, जहाँ पर इतने कि रसूल ने खैबर के मैदान में कहा था कि कल अल्लाह मुझको दूंगा जो मर्द होगा। तो क्या जो 39 दिन लड़ते रहे वो मर्द नहीं थे? बच्चे थे, शादियां थी, दाढ़ियां थी, मर्द तो थे। अल्लामा शिबली नौमानी ने बात लिखी है, मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं। शिबली नौमानी साहब कहते जब खैबर फतह हुआ तो रसूल ने माल गनीमत तकसीम करना शुरू किया। अली को 2 हिस्से देते हैं, बाकी हर सिपाही को 1 हिस्सा। पूरा खैबर चीफ था, ये चचा का बेटा है, दामाद लगता है, बेटी का शौहर है, इसलिए 2 हिस्से दे रहे हो। रसूल कहते सब कह रहे मैंने कल कहा था कल अल्लाह मुझको दूंगा जब मर्द होगा, मर्द के 2 हिस्से होते हैं। हाथ बुलंद करें, हलाली है मेरी। तो अली के दुश्मन से नहीं डरना, वो कुछ नहीं होता। दुश्मन अली मुसल्ले पे खड़े होकर भी बद्दुआ देना लगती नहीं। अली का नौकर चलते फिरते गली में भी दुआ दे दे तो बोला जाती है। इसलिए तो तुम्हारे मुर्शिद हुसैन का फरमान है, हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हमारे दुश्मनों के जनाजे में न जाया करो। बोला क्यों? फरमाते अगर तुम उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दो हमारा मवाली, तो फिर हमें माफ करना पड़ता है। जो हाथ बुलंद हो
ठीक है ना? अली फरमाते कुन ऐसे कैसे हो सकता है? गोता लगाया तो था, उभरा तो थी, शादी हो गई, 6 या 7 बच्चे बीबी ने पैदा किए। मिंबर पर झूठ बोल के मैंने क्या करना है? या अली, मैं तेरा मुकम्मल शिया हुबदार ना सही, लेकिन तेरे दुश्मन का दुश्मन तो हूं ना। मदद करें कि मैं ये बात हलालियों की तरह पहुंचा सकूं। ये बहुत बड़ा शर्फ होता है। आले मोहम्मद का दुश्मन का बंदा दुश्मन हो, बस इससे बड़ी नेकी कोई नहीं कायनात में, और बुग़्ज़ अली से बड़ा गुनाह कोई नहीं। यार देखो, मौलवी जन्नत को लिए चाबी में डाल के फिर रहा है। जन्नत की चाबी मौलवी की कुंड, चाबी ना उसने जेब में रख ली कि ये मेरे, तेरे पास मस्जिद की है, जन्नत की कुंजी नहीं है। वो तो जेब में रख ले कि ये करोगे तो जन्नत नहीं जाओ, ये करोगे, ये नहीं करोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी, ये नहीं करोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी, ये नहीं करोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। नमाज नहीं पढ़ते जन्नत नहीं जा सकते, रोजा नहीं रखते जन्नत नहीं जा सकते। उस मौलवी से पूछना, या साहब काफ का जो कुत्ता जन्नत जा रहा है, वो उसने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितने हज किए हैं? हाँ, मवालियों के हाथ बुलंद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुत्ता किसका है जी? सहाबियों का। अच्छा, सुभान अल्लाह भाईजान, सहाबियों का कुत्ता है। पत्थर बन के बैठा है कतमीर, उसी हालत में ज़ियारत बना हुआ है। और यार दाद नहीं दी मुझे, कुत्ता हो के अली मोहम्मद ज़ियारत बना हुआ है कुत्ता, करते लोग ज़ियारत है। असहाबे काफ जन्नत मांगने वाले हैं या देने वाले हैं? मांगने वाले ना, और अली जन्नत देने वाला है। मौला तुम्हारी जिंदगी करे तो हमने तो मसला ही हल कर दिया मेरा। वो है मांगने वाले, ये है देने वाला। और मांगने वाले कुत्ते को दे सकते हैं? क्यों चुप कर गए हो? नहीं चाहिए अली के दरवाजे से जन्नत जनाब को? मैं कहता हूँ, जुमला मैं कहूँ और बंदों के हाथ बुलंद ना हो तो यहाँ मेरा मिंबर हुसैन पर सैयद की बारगाह में मेरा वादा है अब्बास की कसम। इसी जुमले के बाद तुम्हारी तकरीर खत्म, तकरीर बंद, मसाहब सुनो और अपने घरों को जाओ। वो है मांगने वाले, अली है देने वाला। चलो तेरी बात मान लेते हैं, अली जितना कमजोर हो जाए, असहाबे काफ से ज्यादा कमजोर नहीं, और अली का शिया जितना नजस हो जाए, कुत्ते से ज्यादा नजस। अली की बादशाही है, अली इस्माइली है, हर हलाली को सलाम। ओ आखिरी बात है, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी। सलाम है जनाब, सलाम 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 भाईजान, मैं सलाम कर रहा हूँ, ठीक है ना जी? कतमीर उसका नाम है, वो कुत्ता जन्नत जा रहा है, वो जाएगा, वो कतमीर है। और तुम्हें पता है असहाबे काफ सहाबी है तेरे 12वें इमाम के। ये बात शायद आपने दाद नहीं दी, क्योंकि कहां से लकब है तेरे कायम। अब तो आई ना भाई, अब तो आई ना भाई। घड़ा भर के किनारे पे रखा, औरत जात थी, कपड़ों समेत गोता लगाया। गोता लगाया तो थी, उभरा तो था। 7 बच्चे पैदा करके उभरा तो था। वही घड़ा, वही कपड़े। तुम पीछे रह जाते हो यार, क्या हो गया भाईजान? थोड़ा सा जाग, हुसैन की मजलिस में बैठा है। वही 7 बच्चे पैदा करके, वो कपड़े भी वही पड़े हैं, वो जो घर से पहन के आया था। घड़ा भी पड़ा, जल्दी जल्दी कपड़े पहने, घड़ा सर पे रखा, पैर दिखता है, पैर दिखता है, अपने आप को टटोलता है, सोचता है क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर आ गया। अब बंदे सुन के मेरे साथ न बोले, मैं क्यों यहाँ पे आता हूँ, मेरे सफर करने का मकसद क्या है? 7 बच्चे पैदा करके जब घर आया, बीवी अभी मछली बना रही थी।
सुभान अल्लाह। शक किया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि 18,000 साल गुजर जाए और कुंडी हिलती रहे। 7 बच्चे पैदा करके जो लौटा तो बीवी अभी मछली बना रही थी। कहते फलां की अम्मा मुझे देर तो नहीं हुई? तो नहीं आप अभी गए हैं, अभी आ गए। हुसैन की नमाज कसम। कहते फिर तू मछली बना, मैं जरा दरबार मुर्तजा से होके आता हूँ। अब उस बंदे का हाथ नीचे कैसे रह सकता है? तो रिस्क अली का उठा के खाता रहता है। 7 बच्चे पैदा करके जब ये अली के दरबार में आया तो अली उन्हीं जुमलों पर थे। पानी चल रहा था, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, ये चलता आया। अली बोलते हैं पानी चल रहा था। जी 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 जी। सिदरा पे रसूल पहुंचे, सफर खत्म करेंगे। बुराक रोक गई, जिब्रील रोक गया, सरकार सिदरा अबूर कर गए। छठे आसमान पर या चौथे आसमान पर अंबिया को जमात कराई। जमात करा के रसूल आगे चले गए, नबी नीचे रह गए। शीशे में देख कर ना बंदे को मोहम्मद की बराबरी करनी चाहिए। महबूब करीब हो जाए, महबूब करीब हो जाए, मैं लहर को करीब कर देता हूँ। सफर करते करते हिजाब अहदियत के रसूल करीब पहुंचे। अब तवज्जो, आशिकान आले मोहम्मद की। मोहब्बत करने वाले ना भी बोले तो राज खैर है, मोहब्बत नीचे रह जाती है। मोहब्बत कदम मैंने यूं कांपते देखे हैं, इसको मैंने बगैर जबान के बोलते हुए देखे। जो इश्क वाले बैठे होते हैं 10 हैं या सारे हैं, या इशारा है ना, इसलिए इशारा वही समझते हैं जो इश्क करता हो। रसूल ने पर्दे के करीब जाकर कहा अस्सलामु अलैका या रब्बी, परवरदिगार मेरा सलाम। पर्दे के अंदर से आवाज आई अलैका सलाम या हबीबी, शाबाश महबूब मेरा भी सलाम। सलाम का जैसे आया ना हाँ जवाब, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनसे कहूं। और मैं वहां पर मौलवी तो नहीं बिठा सकता पर्दे के अंदर कि तू फिर मुझे दाद दे, तू ना दे। पर्दे के सलाम का जवाब आया ना, रसूल ने कहा मेरा परवरदिगार ये बोल रहे हैं। शाबाश, हाँ हबीब हम बोल रहे हैं। सिंध वालों को हम का नहीं पता चला यार। हाँ हबीब हम बोल रहे हो। जवानियां तुम्हारी सलामत रहे। जवान इतने खूबसूरत बात को समझ गए हो, बुजुर्ग तो मुझसे वैसे बेहतर जानते हैं। हम बोल रहे हैं। पर्दे के अंदर से आवाज है, अब जागते जाओ तो फिर मेरे हम सफर। हबीब जिब्रील की नौकरी पसंद आई, बुराक की सवारी अच्छी लगी, अंबिया का प्रोटोकॉल पसंद आया, फरिश्तों का इस्तकबाल अच्छा लगा, होरों के तराने पसंद आए, जन्नत कौसर तस्नीम सलसबील की सैरें की, जहन्नम में जलते हुए अली के दुश्मन देखे। मैं जान के मठा हो गया। मठा समझते ना, आराम से बिटू के तुम थके तुम्हें सांस लेना चाहिए। सांस आराम से चलते हुए देखे जी परवरदिगार। जब अल्लाह यहाँ खामोश हुआ ना, अब रसूल बोले। रसूल कहते परवरदिगार क्या फायदा बुराक की सवारी का, जो अब पहुंच जाऊं उनको मैं बाहर। क्या फायदा जिब्रील की खादमी और नौकरी का, क्या फायदा इतने बड़े एहतमाम और एहतशाम का, क्या फायदा इतने बड़े प्रोटोकॉल का। मेरे साथ हाथ तो मिला, जो हाथ बुलंद है उसी हाथ का सदका मोहताज ना हो। हाथ बुलंद है नरी, मेरे साथ हाथ तो मिला। ये मैं कल का यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ तो ये बड़ा इंतजाम तो खाने तो पीने तो रिहाइश तो ये तो वो तो फोन तो इज्जत तो मकाम तो पानी, मेरे साथ हाथ ही ना मिलाए। क्या फायदा इस मेजबानी का? ये कौन सी मेजबानी है? रसूल ने कहा हाथ तो मिला। अल्लाह मागा नसीम बादशाह किबला का जुमला है, वो फरमा रहे थे कि अल्लाह ने ना जानबूझकर हाथ वाली बात का रुख बदला। जो पहुंच गए हो मैं कहता हूं तुम जियो, जो नहीं पहुंचे मेरी उंगली पकड़ो, मैं जनाब को चलने के फन सिखाऊं। जानबूझ के ना थक गए हो।
परेशानी मंगवाओ जनाब करिए। जानबूझ के हाथ वाली बात को बदला। कहा हबीब ये हाथ वाली बात बदलना करते हैं, पहले मुझसे पूछ तो सही तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया क्यों है। आवाज मुस्तफा पहले तू बता। अल्लाह है रसूल से अल्लाह ने कहा मेरा हबीब जो बच्चा जिसके घर में आता है उसकी तालीम, नाम, लिबास, खर्चा, सवारी, शादी घर वाले के जिम्मे। जी परवरदिगार हबीब मेरे घर में अली के अलावा कौन आया। वाह 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 वाह। तेरी बेटी बतूल का रिश्ता चाहिए मुझे अपने अली के लिए। जो बंदों के हाथ बुलंद हो गए अली बतूल को मैं किसी का मोहताज न फरमाए। जितने सैयद बैठे मैं तुम्हारी मिन्नत करूंगा कि तुम्हारी कनीज का बेटे जुमले पर सैयद नहीं बोलेंगे। मैं तुम्हारी तख्ता को कयामत के दिन शिकायत लगाऊंगा। क्या फायदा ऐसी औलाद का जो अपनी दादी और बातों को सलामी न कर सके। मातमी बोले न बोले मैं इनसे राजी, मेरा मौला इनसे राजी है। मुझे तेरी बेटी बतूल का रिश्ता चाहिए अपने अली के लिए। रसूल पर्दे के करीब उठे, उठ कर कहते परवरदिगार इतने छोटे से काम के लिए तूने इतना बड़ा इंतजाम किया है। तू जिब्रील के जरिए जमीन पे पैगाम भेजता, मैं फातिमा का रिश्ता अली के नाम लगा देता। पर्दे के अंदर से आवाज आई हबीब तू भी मेरा महबूब न होता मैं तुझसे सख्त लहजे में काम करता। जिब्रील की जुबान में इतनी तहारत है कि वो फातिमा का रिश्ता अल्लाह अकबर। जो हाथ बुलंद है हाथ मखदूमा से खैरात ले रहे हो। जिंदगी आ रहा है अच्छा हाथ हयाली का बुलंद है। रसूल ने कहा परवरदिगार चलो इसी रिश्ते को, अब तू समझे तो मैं तेरा मिजाज बदलना चाहता हूँ। रसूल ने कहा परवरदिगार चलो इसी रिश्ते को पक्का करने के लिए हाथ तो मिला। जा मौलवी को चैलेंज कर। सांस लेना एक मिनट क्योंकि जुमले की कीमत मुझे पूरी चाहिए। एक बंदा भी चुप रहे जो मैं छोड़ के तेरे पास आ जाऊंगा इतने इख्तियार में रहे। मैं तेरा शाना हिलाऊंगा। आया क्यों था या मेरा चैलेंज कबूल कर या फिर तेरा हाथ बुलंद हो। आसमानों पर निकाह पढ़ा है अली बतूल का अल्लाह ने, जमीन पे पढ़ा है मुस्तफा ने। जब मौलवी से कहे कि ये बात सही नहीं है कि जब तुम्हारा मौलवी निकाह पढ़ता है तो वो सीधा निकाह पता है क्या पढ़ते हैं अनकहतो मुवक्किलती ले मुवक्किली अलल महरिल मालूम। अली बतूल के निकाह पे रसूल ने अनकहतो का सीधा इस्तेमाल नहीं किया। मोहम्मद ने कहा ज़व्वज तो मुवक्किलती ले मुवक्किली अलल महरिल मालूम। अब मैं कहां से अकीदे वाले लोग ढूंढ के लाऊं। मुझे तो नहीं पता जहां कितने अकीदे वाले हैं। ज़व्वज तो कहा है अनकहतो नहीं, क्योंकि अनकहतो का लफ्ज सीगा निकाह में वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां जिस्म का रिश्ता हो। बंदे पीछे रह गए, शायद हम ही आगे निकल गए, तन्हा सफर कर गए। ये मोहल्ला तो बिल्कुल ही नहीं बोला मेरे साथ। मौला आपको बोलने की तौफीक अता फरमाए मजलिस में। हाँ ज़व्वज तक मान लिया जोड़ा। रसूल ने जोड़ा करार दिया है जब तेरे वाला रिश्ता नहीं। मौलवी अंदर का खबीस है जी, जो आले मोहम्मद को भौंके कमीना होता है। लिबास भी आले मोहम्मद का, दरवाजा भी आले मोहम्मद का, अजान में भी अली का नाम, कलमे में भी अली का नाम, अकामत में भी अली का नाम। अली के दरवाजे पे भी खड़ा है, फिर कह भी रहा है ये हम जैसे का कलमा क्यों पढ़ता है। जो अपने जैसा उसका कलमा नहीं होता। जागना रसूल ने कैसे रिश्ते को पक्का करने के लिए हाथ मिला। समेट गया मेरा बयान। या अली मदद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहो। रसूल से अल्लाह ने कहा भी फिर वही हाथ वाली बात, फिर वही जिद। अभी मेरा जिस्म होता ना मैं मक्के आता। तुझे मैं आने की यहाँ जहमत ना देता मेरा महबूब। मैं झूठ बोलूं अब्बास का दलाल मेरी जबान पे अभी फालज गिराए गूंगा हो के मिंबर से उतरूं ताकि जमाने के लिए दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाऊं। जमाना कहो देखो इसने आले मोहम्मद के मिंबर पे बकवास किए, झूठा था इसलिए गूंगा हो के फिर रहा है। तेरी जबान हरकत में ना आए तो फिर तेरे अंदर अली है ही नहीं है। रसूल ने वहीं बैठ के कहा परवरदिगार अगर तेरा जिस्म होता तो तू कैसा होता। कहा जैसा अली है। जी 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 जो हाथ बुलंद हो गए, ये हाथ कम
रसूल ने हिजाब यादियत में हाथ डाला, का हाथ मिलाते हैं ये पर्दा फाड़ो। जल्दी की है मैं बहुत जल्दी कर गया हूँ। आवाज अंदर आ गई, तेरा मेरे अंदर दरमियान यही पर्दा ही तो है। मिलाता हूँ हाथ बिला तशरीफ। मोहम्मद वहाँ रिवायत फरमाते वहाँ ना हज़रत अबू हुरैरा थे, ना कोई और रावी था, ना कोई और बंदा था, रसूल ही थे। खुद रसूल से रिवायत है। रसूल को काफिर और मुशरिकून ने सादिक और अमीन माना है, तो मुसलमान को तो उससे अच्छा मानना चाहिए, ठीक है ना जी। रसूल कहते पर्दा सिर का और हाथ बरामद हुआ बिला तशरीफ। मुझे देखना बिला तशरीफ अल्लाह के हाथ ने मोहम्मद के हाथ को पकड़ा, पकड़कर फेरना शुरू किया। अब कुदरती हबीब क्या कर रहे हो? परवरदिगार तेरे मुकम्मल हाथ की ज़ियारत। हुसैन के हाथों की कसम, जैसे हुआ ना बिला तशबीह, अल्लाह का हाथ सीधा, मोहम्मद ने हाथ छोड़ा। हबीब छोड़ा क्यों है? ये तेरा है। कैसे खरीदार मिल गए हमें, कैसे कैसे लोगों के हाथ बुलंद हो गए, कैसे कैसे अजीम लोग बुलंद हो रहे। हबीब यही तो मेरा है। मैंने पहले कहा कि 18,000 साल की रात थी, रसूल रात को वहीं रहे, रात को वापस आ गए और रात को लौट गए। रात को गए, रात को रहे, रात को आ गए। दिन का वजूद ही नहीं, जिक्र ही नहीं। मलिकतुल अरब के बिस्तर पर आके सरकार बैठे। खदीजा मैं मेराज पे गया था, बिस्मिल्लाह। खदीजा चौथे आसमान पे ये हुआ, छठे पे ये हुआ, सातवें पे ये हुआ, सिदरा पे जिब्रील रुक गया, बुराक रुक गई, वहां से और नौकर मिला और सवारी मिली जो मुझे मलकूत तक ले गई। मलकूत पे वो नौकर भी रुक गया, सवारी भी रुक गई, वहां से और नौकर मिला और सवारी मिली जो मुझे जबरूत तक ले गया। वहां पर नौकर भी रुक गया, सवारी भी रुक गई, वहां से और नौकर मिला और सवारी मिली जो मुझे लाहौर तक ले गया। लाहौर के आगे कुछ भी नहीं था, मैं तन्हा था, नूर का समंदर था। मैं लहरों से गुजरता हुआ गुजरता हुआ गुजरता हुआ गुजरता हुआ हिजाब हजरत के करीब पहुंचा। ये बात हुई, ये कलमा हुआ, ये कलाम हुई, ये गुफ्तगू हुई, ये अंदाज मेरा था, ये अंदाज अल्लाह का था। खदीजा थोड़ी देर गुजरी, पर्दा सिर का एक खाने का तश्त मेरे सामने आया। ये खदीजा को रसूल हाल दे रहे मक्के में बैठकर। पढ़ने का खाने का तश्त आया, पर्दे के अंदर से आवाज़, हबीब तुम हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ। मैंने खाना ना खाया, पर्दे के अंदर से आवाज़, हबीब खाते नहीं क्या? खाना तेरे मेयार का नहीं। मैंने कहा मेरे मेयार से अफसल है, मैं अब्द हूँ, तू मेरा माबूद है। खाता नहीं। मैंने कहा जी मैंने जमीन पे मुसलमानों को दर्स दिया है, जो बंदा तन्हा अकेला खाना खाए वो बखील होता है। तो मुझे यकीन था कि ये बंदे तो मेरे साथ कम अज़ कम हम सफर रहेंगे, जो काफी देर से मेरे हम सफर थे। मैंने कहा जी, मैंने कहा जो बंदा अकेला खाना खाए वो बखील होता है, तो क्या मुझसे वो नहीं पूछेंगे कि वहां क्यों अकेले खा के आया? खदीजा फिर पर्दा सिर का एक हाथ आया, उसने खाने के थाल से, तख्त से, ट्रे से सेब उठाया, पर्दे के पीछे गायब हो गया। फिर आवाज, हबीब हम तेरे साथ खाने में शरीक है, बिस्मिल्लाह खा। जितना खदीजा मेरी तबीयत थी मैंने तनावुल किया। ये बताकर आधी रात को मोहम्मद खदीजा के घर में बैठे, फतक्का अलल बाब मुस्तफा, आधी रात को बीबी के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से रसूल ने पूछा, मन अंता अलल बाबी, कौन है मेरे दरवाजे पर? बहर वाला बोला, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। रसूल उठे, कुंडी खोली, अली अंदर हाजिर हुए। मोहम्मद कहते, या अली तू पहले तो रात के इस वक्त कभी भी मेरे घर नहीं आया, आज कैसे आना हुआ? अली कहते, सरकार मुबारक देने। किस बात की मुबारक? सरकार मेराज की। रसूल कहते, मैं घर से बाहर किया ही नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं, तुझे कैसे पता चला? फदखला यदाहु फी जैबिही, अली ने जेब में हाथ डाला, निकाल के कहते हैं यही सेब था। अल्लाह अकबर। आपके क्या कहने, इन उठे हुए हाथों के क्या कहने, इन बोलती हुई जबानों के क्या कहने, इन जी 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 है नहीं। अल्लाह हाथ बुलंद हलाली है मेरी। सदा जी हो, सदा जी हो, सैयदा राजी हो, मोहम्मद की बेटी आप पे राजी हो। मलके कौनैन मेरे और आपके और बानियान के हाल पर रहम फरमाए। मेरे भाई जितने तशरीफ फरमाओ, मालिक तुम्हें किसी का मोहताज फरमाए। बुजुर्गों से सुना है, सिंध के मिजाज की बात करें, ये सफेद रीश बुजुर्ग कहते हैं कि बेटी की कब्र अगर वतन पे हो ना तो कब्र आबाद होती है। नहीं पहुंचे हो, जिनकी है निकल गई, क्यों निकली है? जिसकी नहीं निकली उसे पता ही नहीं चला। बेटी की कब्र
वतन पे हो तो कब्र पे चिराग जलता है, प्रदेश में हो तो फिर चिराग नहीं जलता। अजीब किस्मत है मोहम्मद की बेटी की, कब्र भी वतन पे है और चिराग भी नहीं जलता। वाह 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 वाह। सिंध का एक मिजाज है, अपने मसाइब सुनने का अंदाज अपना है, उस अंदाज में मैं रखना नहीं डालना चाहता। जिस तरह तेरी है करने को दिल करे कर, न करता न कर, लेकिन है तो गरीबों की कहानी है। कायनात की दो हस्तियां भाईजान ऐसी हैं जो आज तक कब्र में चैन से नहीं बैठी। पहली हस्ती है तेरा अलमू वाला अब्बास, जो आज भी कब्र में बैठकर हुसैन को देखता रहता है कि शायद कभी अकबर का ये बाबा मुझे लड़ने की इजाजत दे दे। दूसरी हस्ती है तेरे मोहम्मद की जख्मी पहलू वाली बेटी। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा कौनैन आपको किसी का मोहताज न फरमाए। बेटियों के पर्दे हूं मैं, सोच इसलिए रहा हूं कि बंदे कितने दिन की है नहीं निकली। तो बंदा सर नीचे करके रोता है, उसे फजाइल सुन के चला जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ फजाइल सुनने आया है। जब है कर सकता है वो सर ऊंचा करे। रोता वही है जो अपना लगता हो, वो लगता ना हो उसकी है नहीं निकलती। जवान होके इतनी खूबसूरत है कर रहे हैं। दूसरी बात करूं फिर आपसे, है कि खैरात बीबी से तुम्हें मांग के दूं। बंदे लूटे रात को जाते हैं, कफन दिन को होते हैं, लेकिन हुसैन की मां कितनी गरीब है, लूटी दिन को गई है। वाह 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 वाह। आए मेरा अल्लाह, जो हाथ सीने तक नहीं जा सका, अल्लाह करे वो हाथ शिया का हो ना। लूटी दिन को गई है, कफन रात को हुई है। मोहम्मद मखदूमा ने खुद वसीयत की थी, या अली मुझे आधी रात का जनाजा उठा, या अली मेरे जनाजे का ऐलान न कर, या अली जो मेरे बाबा के जनाजे में नहीं है वो मेरे जनाजे में शरीक ना हो। या अली मेरी 40 कब्रें बनाना, या अली मेरी कब्र का पहरा देना। मेरे सर पे कुरान ले आया, पास कलम मेरे हाथ में पकड़ा, मिंबर आले मोहम्मद पे बैठा हूँ। बतूल से पूछा गया, अली से पूछा गया, या अली 40 कब्रें बतूल की क्यों बनाई है? अली फरमाते हैं ये मुसलमान बेगैरत इतने हैं, इन्होंने हुसैन की माँ की कब्र का भी एहतराम नहीं करना, इसलिए ढूंढते रहेंगे कि कौन सी कब्र मोहम्मद। अरे वाह 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 वाह। सारी रात बतूल पूछती रही, या अली 9 साल बाबा के घर में रही हूँ, कभी बाबा से कुछ नहीं मांगा। या अली मुझे 9 साल तेरी हवेली में हो गए, या अली कभी तुझसे भी सवाल नहीं किया।